Okay, so this is day 2 of the challenge. So this is the problem we'll be solving today, word ladder. So the problem is fairly simple. Like you have a begin word, you have a list of words given to you, and you have an end word COG. So in this case, it's HIT is the begin word, end word is COG, and the word list is this. So you have to make a chain of words, and in the end, you should be able to reach this last word COG. And for every chain that you make, for every suppose you're going from word A to word B, there should only be a difference of a single letter. So suppose this is HIT, then you can go to HOT. Like there's only like the only difference is in the sorry, second letter. So from HIT you went on to HOT. From HOT you can go to DOT again. Only the first character is changing. Then from DOT to DOG, and similarly in the end you will read COG. So the total path length was 5, and that is your answer. So you actually have to give the shortest transformation sequence. So to get the shortest sequence, as soon as you see a problem which has the word shortest in it, you will like तुम obviously BFS के बारे में सोचोगे, right? So this is a graph problem, and like that was the first hint. You like this is the graph problem, and you have to use BFS in it. ठीक है. And अभी now the only issue here is shortest transformation sequence, right? So we all know that जब भी shortest आता है, so BFS is the most ideal case, क्योंकि BFS का if you see the path traversal, it is always in the form of the shortest. Like if you start from a node एंड तुमने BFS चलाया एंड तुम स्टोर करते जा रहे हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, दैट इज़ एक्चुअली द शॉर्टेस्ट टाइम फ्रॉम दैट स्टार्ट नोड टू रीच दैट पर्टिकुलर नोड. दैट इज़ द ideal condition for, like, that is what happens in BFS, breadth first search. Like it will always give you the shortest time to reach any particular node. So यहाँ पे भी it's kind of the same. So if I show you this diagram, so suppose this is the word HIT, and your like this is the start word, and your end word is something like GIP. ठीक है. So you have HIT and your end word is GIP. Now हमें कुछ ऐसा लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिए थे, ठीक है. जैसे ये एक सैम्पल है ताकि तुम्हें एक बार BFS अच्छे से समझ आ जाए. सो तुम्हें कुछ सैम्पल वर्ड्स दिए थे, GIT, HIK, GIK एंड GIP. नाउ तो इसमें बहुत तरीके, HIT से तुम GIT भी जा सकते थे, HIK भी जा सकते थे, करेक्ट. सो दिस इज़ वन वे. देन GIT से यू कैन गो टू GIP, HIK से you can go to GIK, and then GIK से eventually you can go to GIP. So these two are same words, हाँ, GIP और ये दोनों सेम वर्ड्स है. बट तुम जब इस पाथ से ट्रेवर्स किया तुम लोगों ने, तो तुम्हें 2 का डिस्टेंस मिला, एंड जब तुमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया, सो यू गॉट अ डिस्टेंस ऑफ 3. अभी अगर मैं सेम चीज़ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाता, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने सबका शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर करके रखा है, ठीक है. तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो इट इज़ ऑलरेडी 0. देन यहाँ पे इट इज़ 1. यहाँ पे मुझे एक टाइम लगा दोनों में पहुँचने में, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, राइट. यहाँ पे पहुँचने में 2, यहाँ पे पहुँचने में 2, देन ये लास्ट नोड पहुँचने में 3. दैट इज़ हाउ ब्रेथ फर्स्ट सर्च विल वर्क. एंड इवेंचुअली तुम्हें लास्ट में GIP का शॉर्टेस्ट टाइम दे रहा है. तो यहाँ पे GIP तुम्हें 2 अलग नोड्स दिख रहे हैं, बट एक्चुअल तुम्हें ग्राफ इम्प्लीमेंटेशन में पता है दोनों सेम ही नोड होंगे. एंड वंस यू रीच GS, सो इवेंचुअली हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक इज़, ये थोड़ा गलत दिख रहा है यहाँ पे. इवेंचुअली ये तो मैंने ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए बताया कि 2 डिफरेंट पाथ कैन लीड टू सेम. वो ओके, इरेजर का है, हाँ. सो एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा, ये दोनों यहाँ पे और ये GIP को ही पॉइंट करेंगे, राइट. सो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च 0, इसका 1 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2. फिर ये 2 अपडेट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ब्रेथ फर्स्ट सर्च में पता है हम नोड को या उस पर तभी डिस्टेंस अपडेट करते वंस उसका अगर फर्स्ट टाइम विजिट है या नहीं. सो यहाँ पे इट इज़ 2, देन इवेंचुअली यू विल हैव टू रिटर्न दिस 2. सो बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ स्टोर्ड फॉर GIP वुड बी योर आंसर, +1, क्योंकि टोटल इसमें 1 2 3 नोड है. अभी अभी तुम्हें समझ गया कि BFS इम्प्लीमेंटेशन, आई एम श्योर तुम सबको आता होगा कि BFS लगा के शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, दैट इज़ ऑल. अभी इसमें ग्राफ बनाना कैसे. सो व्हाट आई डिड इज़ अ वेरी ब्रूट फोर्स लेजी चीज़. उसका मतलब मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ 5000 इंटू 5000 इंटू 10 शायद. सो आई न्यू दिस वुड पास, मतलब इतना लीड कोड अलाउ कर देता है 1E7 के अराउंड. तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, बट आइडियली यू शुडेंट. सो आई विल शो यू माई इम्प्लीमेंटेशन वंस. तो व्हाट आई डिड इज़, पहले मैंने ग्राफ क्रिएट किया एंड देन मैंने उस पर ऑपरेशन चलाया, विच इज़ नॉट करेक्ट. यू कैन ऑलवेज डू दिस इन रन टाइम,
बट आई स्टिल शो यू माई इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले मैंने क्रिएट ग्राफ किया, क्रिएट ग्राफ फालतू अप्रोच, I0 to N JI+1 से, मतलब मैंने पूरा ब्रूट फोर्स चलाया, मैंने चेक किया क्या इन दोनों के बीच एक भी एज बन सकता है या नहीं। एंड एक बार, और ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका लाइक ठीक है, मतलब द एम ऑफ दिस ट्यूटोरियल्स टू शो कि मेरा फर्स्ट अप्रोच क्या था। आई ऑब्वियसली एक्सप्लेन कि इसका ऑप्टिमल क्या है। नाउ इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ वन वर्ड, देन मैं उन्हें ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट एडिंग an edge between them, और edge वो adjacency list वाला logic. Once you have done that, मैं BFS चला रहा हूँ, BFS path, like the BFS in the end would give me the shortest path for that end word. Last में मैं उसको +1 कर दूंगा. So how a BFS works is simple. Like पहले तो ये shortest path का मैंने initialize कर दिया यहाँ पे, एक बार ये shortest path का initialize हो गया, I'm storing map और string का int, but हाँ तुम क्यू में बिगिन वर्ड पुश करो बिकॉज दैट्स योर स्टार्टिंग नोड, यू ट्रेवर्स उसके नेबर्स पे, यू विल डू द ट्रेवर्सल, एंड शॉर्टेस्ट पाथ अगर नेबर का -1 है मतलब वो अब तक विजिट नहीं हुआ है, अगर वो ऑलरेडी विजिट हो गया तो उसको ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पाथ सेव्ड है, सो यू डोंट वांट टू एक्सीड दैट शॉर्टेस्ट पाथ। ये वाज फॉर डिबगिंग पर्पस। एंड देन शॉर्टेस्ट पाथ तुम +1 कर दोगे क्योंकि तुम्हें पता है अभी ये क्यू में पुश होने वाला है और मैं यहाँ जिस टाइम पे पहुँचा हूँ दैट इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम, एंड देयरफॉर यू विल पुश दैट टू योर क्यू। सो ये तो स्टैंडर्ड BFS ही है, लाइक इसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, ये BFS है, बट इसका ऑप्टिमल क्या है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, तो इसका ऑप्टिमल मैं एक बार बता देता हूँ, सॉरी। सो इसका ऑप्टिमल क्या है, वंस यू हैव दिस HI, सो ये जो तुम्हें ये वाला पार्ट दिया है ना, सब इरेज करने दो, कचरा हो गया। हाँ, तुम्हें जो ये वाला पार्ट दिया है इसको एक, अगर तुम एक सेट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, तुम्हें जो वेक्टर दिया था उसको सेट में कन्वर्ट कर दिया, फिर तुम्हें फर्स्ट वर्ड दिया HIT, तो इसको यू विल लाइक इसको तुम क्यू में पुश कर दो, इसको क्यू में पुश कर दो, फिर नेक्स्ट वर्ड कैसे ढूंढना है। सो व्हाट यू कैन डू इज इस हाँ, HIT है राइट, HIT में स्टार्टिंग से H देन I देन T, इन सब का जाके जस्ट चेंज द कैरेक्टर। तो H को तुम A से लेके टिल Z रिप्लेस करो, तो तुम्हारे जो भी वर्ड्स बन रहे हैं AIT BIT ZIT टिल ZIT, जो भी वर्ड्स बन रहे, चेक इफ़ इट एग्जिस्ट इन योर सेट, अगर वो तुम्हारे सेट में है देन क्रिएट एन एज, और डोंट इवन क्रिएट एन एज, वो एज वाला लॉजिक ही भूल जाओ, तुम्हें ग्राफ बनाना ही नहीं है, यू कैन डू थिंग्स इन रन टाइम। सो HIT है, गो फ्रॉम A to Z, यू विल गेट योर AIT BIT, तुम चेक करो, सपोज मैं GIT पे था तो आई विल चेक क्या GIT मेरे सेट पे है, मीन्स इट इज़ अ नोड, एंड यू आर ऑब्वियसली अपने HIT में, तो तुम्हें उस क्यू में ग्राफ में क्या हो रहा था, हम यहाँ पे एज बना रहे थे GIT के लिए, सो डोंट मेक दैट GIT वाला एज, तुम बस जाके उस क्यू में पुश कर दो उसको डायरेक्टली, बिकॉज ऑब्वियस है ना वो HIT से कनेक्टेड है, लाइक वो एग्जिस्ट कर रहा है सेट पे, तो ऑब्वियसली तुम उसका एज बनाने वाले हो, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द एज एंड मेंटेनिंग ऑल दैट एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह, उसको तुम पुश ही कर दो अपने, क्या बोलते हैं, अपने क्यू में पुश कर दो, वो जो BFS वाला क्यू चल रहा था। सिमिलरली तुम्हें यहाँ पे फिर HIK भी मिलेगा जब तुम यहाँ का ट्रेवर्सल करोगे। सो बेसिकली द आइडिया इज़ हर इंडेक्स में जाके एक बार उसको चेंज करो A to Z, चेक फॉर ऑल दी वर्ड्स, देन गो टू I, चेक फॉर ऑल दी वर्ड्स इन योर सेट, सिमिलरली फॉर T, एंड देन तुम ट्रेवर्स करते रहो। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैली कम है उससे, लाइक तुम्हारे कितने नोड्स रहेंगे, 5000 नोड्स है, एंड फॉर एवरी देम 10 का 5000 इंटू 10, एंड कुछ ऐसा काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस, तुम्हारा ऐसा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा जो उससे काफ़ी कम है। बट एनी वेज, लाइक तुम्हें आइडिया समझ गया, द मेन पार्ट वॉज फॉर दिस BFS कि तुम्हें क्रैक जी कि इसमें शॉर्टेस्ट पाथ वाला लॉजिक लगाना है। ग्राफ तो ठीक है, लाइक यू कैन ऑब्वियसली गो विद दिस क्योंकि 1E7 वर्क्स इन मोस्ट केसेस, बट इफ़ यू आर आस्क्ड टू ऑप्टिमाइज इट, गो विद दिस अप्रोच, क्योंकि तो मैं ग्राफ मेंटेन वगैरह, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इंप्रूव है, यू कैन गो विद दिस अप्रोच। सो हाँ, दैट्स ऑल फॉर दिस। कुछ डाउट हो इसमें तो पूछ रहे हैं, इट्स अ फेयरली कॉमन प्रॉब्लम ऑल्सो, बट एनीवेज कुछ डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी। बाय बाय।